Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session we are going to see the practical of the topics that we had already covered. The topic that we had covered like type conversions, assignment operators, different types of operators and mathematical library functions. Okay, so I'm going to make a new class. The class name is, first I'm going to explain the explicit type conversion program. ठीक है, so I'm going to take a class. I'm going to convert a float type number into integer type. So I'm just going to take float to int. Float, I'm going to take like this, float to int. Clear? Okay, float to int. So this class is created. Now double click on it. The editor will be open. Control A and delete it. ठीक है, class float to int public static void main ठीक है, string arguments as capital string का, ठीक है, string arguments, after that curly braces start. ठीक है, so in this program what we are going to do, we are going to demonstrate the float type value into integer type explicitly. ठीक है, so first I'm going to take a float variable like x. Float x is equal to 9.75 f. ठीक है, f means that is a float type variable. ठीक है, int, I am taking another variable y semicolon. ठीक है, in this variable y I am going to convert the value of x in integer type. So right now the value of x is its float type, so I'm going to write x, convert it explicitly. So I'm going to write int, ठीक है, int x semicolon. I'm going to print the value of x and y both, then we will see what will happen. Y is equal to plus symbol. ठीक है, I'm going to print the value of y here, after that the value of x. So I will not write the statement again, I'm just going to copy it. Just copy it and paste it. Okay, and change the value of y. In place of y you have to write x. ठीक है, x. Clear? I'm going to compile our program. What we had done in this program, we had made a class float to int. Inside this there is a main function, public static void main. We had taken two variables x and y. X is float type, and this variable I am going to convert in integer type. Right now it is in float type, I am going to convert in integer type. So that's why I have taken another variable that is y, that is integer type, and I am going to store the value of x integer type in y. What will be the value of y here? The value of y will be 9, but the value of x will be 9.75. So just compile it by pressing the key Ctrl plus K, minimize it, come back and go to the main function, click on OK button. Yes, you can see here the value of y is 9 and the value of x is 9.75. It means in the explicit typecasting does not affect the original value. As you have seen in this program,
the value of float is the value of x is remain same, that is 9.75, but the value after explicit conversion that you are going to store in another variable, that is y, that is 9. So it does not affect the original value. So in this way you can do the typecasting. क्लियर है बेटा? टाइप कास्टिंग का प्रोग्राम क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं यहाँ से, या फिर मैं इतना डिलीट कर दे रहा हूँ, मुझे बार बार राइट करने की नीड नहीं होगी यहाँ पे. चलिए डिलीट ही कर दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम. कॉपी करते हैं, ठीक है. यहाँ से दूसरी क्लास बना लेते हैं, ठीक है. क्लास एक प्रोग्राम है ऑपरेटर का, तो ऑपरेटर नाम से क्लास बनाते हैं, ठीक है. ठीक है, ऑपरेटर, डबल क्लिक, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, कंट्रोल वी, ठीक है. यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेटर, ठीक है. यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक ले लेते हैं वैल्यू int a इक्वल टू, आई एम गोइंग टू टेक अ वैल्यू 5, ठीक है. नेक्स्ट int b इक्वल टू 6, क्लियर. And here I'm going to print system dot out dot print ln in new line. What you are going to print? I'm going to just print the value of plus plus a plus b plus plus, ठीक है. कंट्रोल के, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए. स्टिल देयर इज एन एरर, ओके, द स्पेलिंग ऑफ प्रिंट इज रॉन्ग, नाउ इट इज फाइन. अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं भी देंगे देन सी देयर इज नो सिंटैक्स एरर. सो देयर इज अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट. देयर आर टू ऑपरेटर्स, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. तो फर्स्ट प्लस प्लस ए में क्या हो रहा है बेटा? प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, और बी प्लस प्लस में क्या हो रहा है? पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट विल बी द आंसर? प्लस प्लस ए मीन्स फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट. सो द वैल्यू ऑफ प्लस प्लस ए विल बी 6 प्लस b plus plus first assignment then increment. The value of b should be what? 6. 6 plus 6, 12. But again I am going to, after doing this calculation, I am going to print the value of a and b again, ठीक है. So I want the value of a, the updated value of a is equal to plus symbol a, and I will copy this statement and I will paste it here again. Okay, in place of a I will write b, here also I will write b, ठीक है. सो कंट्रोल के, तो आंसर आना चाहिए 12. a की वैल्यू अपडेटेड क्या है बेटा? 6, 12, 6, और b की अपडेटेड वैल्यू क्या है बेटा? 7. तो 12, 6, 7 आंसर आना चाहिए. लेट्स सी, कंपाइल करिए और रन कराइए. यस, यू कैन सी हियर 12, 6, 7. ये प्रीवियस आंसर शो कर रहा है, इसको आप कंट्रोल के से हटाइए पूरा और फिर से रन कराइए. मेन फंक्शन में ओके करिए प्रिंट, ठीक है. So 12 is what? That was the execution of that statement. After that the updated value of a is 6 and the updated value of b is 7. Clear बेटा? So इस तरीके से आप इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. असाइनमेंट ऑपरेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ. असाइनमेंट में क्या होता है बेटा? यू आर असाइनिंग सेम वैल्यू. Suppose in another variable, suppose that you have taken c variable. In this variable you are taking this value, you are copying it and pasting here. Control, ठीक है, cn, control v, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट की जगह आप क्या कर रहे हैं? c प्रिंट कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि आपने अब क्या किया, असाइनमेंट कर दिया, और असाइनमेंट होने के बाद वैल्यू किस में चलेगी, सी में, और सी को आपने यहाँ पर स्टोर करा लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे बेटा थोड़ा सा कोड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, 1 लाइन आपकी बढ़ गई। ठीक है, तो कोड जितना स्मॉल होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। सो प्रोग्राम शुड नॉट बी लेंदी। ठीक है, आंसर वही आएगा, सेम आंसर है, बट आपने किया क्या, एक वेरिएबल ले लिया एक्स्ट्रा, वो असाइनमेंट वेरिएबल है। ठीक है, और असाइनमेंट वेरिएबल में यू आर सेविंग दिस वैल्यू, इंक्रीमेंटेड वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप माइनस माइनस भी ले सकते हैं, आप प्लस करिए, और मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ ए माइनस माइनस। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस ए, द वैल्यू ऑफ, ये आपको पता ही है, इतनी वैल्यू तो आपको पता थी, 12 है, 12 के बाद हो रहा है प्लस ए माइनस माइनस। अब यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए क्या थी, 6 थी, तो 6 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 18, सी की वैल्यू हो जाएगी 18, बट अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। सो 18 5, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी बेटा, 7। सो 18 5 7, कंट्रोल के करेंगे, नो सिंटेक्स एरर, 18 5 7 आंसर आना चाहिए। लेट्स सी, यस 18 5 7 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए, और बाकी आप जावा पर रन करा के भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम लोग प्रोग्राम देखेंगे लाइब्रेरी मेथड्स बेस्ड पे। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों ने मेथड से डिस्कस किए थे। हम लोग देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैंने वही मेथड डिस्कस किए थे जो बोर्ड एग्जाम से इस बार रेलेवेंट है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है, और इसीलिए मैंने केवल वही जितने भी फंक्शंस है वो डिस्कस किए थे। रिंट फंक्शन मैंने डिस्कस नहीं किया था, रिंट फंक्शन आपका बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न में नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइब्रेरी मेथड्स बेस्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ लाइब्रेरी मेथड। ठीक है, लाइब्रेरी मेथड नाम से एक मैंने क्लास बनाई है, कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, क्लास लिखेंगे, लाइब्रेरी मेथड मैंने राइट किया। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आप हैबिट में रखिए, इसको राइट करना है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स सेमीकोलन। ठीक है, inside this I am going to perform power function. The power power function is there, power 2,0 2,0। ठीक है, this is a message, that's why I am writing inside the double quotes. After that I am going to print the value of this also by using math.power function. Math is a class. By using class name I am going to access the power function pow math dot sorry। ठीक है, pow 2,0 right। again I am going to copy it, this statement I am going to paste it here। ठीक है, in place of 0 I am going to put it here 1, you can also put it 1, again I am going to paste it, in place of 0 I am going to write 2, I am going to write 2 here। ठीक है, now we will see what will be the result। just wait a minute। ठीक है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 के पावर 0 दैट इज 1 नहीं बेटा 1.0, नेक्स्ट 2.0, नेक्स्ट 4.0। ठीक है, लेट्स सी,
go to the main function, click on OK button. Now you can see the resultant 1.0, 2.0, 4.0. पॉइंट में क्यों आ रहा है बेटा? As you know very well, रिटर्न टाइप कैसा है बेटा? डबल टाइप. That's why it is showing in पॉइंट. क्लियर? इसको कंट्रोल के करते हैं. दूसरा फंक्शन जल्दी से देखते हैं. ठीक है, ये हो गया पावर फंक्शन. SQRT जैसे करना है आपको, तो यहाँ पर आप पावर की जगह मैं इन दो स्टेटमेंट्स को डिलीट कर दे रहा हूँ. ठीक है, इन प्लेस ऑफ पावर आई एम गोइंग टू राइट SQRT. ठीक है, here also SQRT. Let's see what will happen. There is a error. Just wait a minute. Okay, yeah, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसमें हम टू वैल्यूज, टू आर्गूमेंट पास कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता बेटा, स्क्वायर रूट में केवल एक ही आर्गूमेंट होता है, इसलिए एरर आ रही है. यहाँ पर 25 दे दीजिए. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब देखते हैं, इसको रन कराते हैं. 5.0 आंसर आना चाहिए. ठीक है, ओके की क्लिक करिए. यस, SQRT 25 5.0 आंसर आ रहा है डबल में. ठीक है, नो इशू. चलिए, इसमें एक केस और था निगेटिव नंबर वाला, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर -25 कर देते हैं. ठीक है, क्या कर देते हैं बेटा? -25. कंट्रोल के करिए. नो सिंटैक्स एरर. अब मेन फंक्शन पे जाएंगे, ओके करेंगे. बेटा क्या आ रहा है? NaN, नॉट अ नंबर. मैंने आप लोगों को बताया था जब SQRT पढ़ा रहे थे, आपको बताया था कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट NaN. NaN मीन्स नॉट अ नंबर. स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं लेता है. ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? NaN. देखिए, कंपाइल तो हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है? NaN आ रहा है. आपके अकॉर्डिंग -5.0 नहीं आ रहा है आंसर. क्या आ रहा है? NaN. ठीक है, तो इस केस को याद रखिएगा. नेक्स्ट क्या है? CBRT. घुमा के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये. ठीक है, माइनस वाला याद रखिएगा. CBRT अगर हम यहाँ पर 125 कर देते हैं, देखिए माइनस में है CBRT. क्यूब रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, माइनस में नंबर आ सकता है. ठीक है, माइनस में ही वैल्यू आएगी. कंट्रोल के करिए. कितनी आनी चाहिए? -5.0 आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. देखिए आ रही है CBRT -125 -5.0. क्यों? क्योंकि CBRT में नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट SQRT में क्या होगा? नंबर कैसा होगा बेटा? केवल पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे फंक्शंस को एक्सिक्यूट कर सकते हैं. मैं एक सील फंक्शन और बता दे रहा हूं आप लोगों को. सील, कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं. सील ऑफ 46.6 और यहाँ पे हम 46.6 कर देते हैं. ठीक है, सील फंक्शन मैंने बताया था सीलिंग फैन से. सीलिंग फैन ऊपर होता है. ठीक है, तो क्या होगा? क्लोजेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट. सो आंसर इसका आना चाहिए 47.0. सो लेट्स सी द आंसर. यस, 47.0 दैट इज द आंसर. क्लियर? एक फंक्शन और हम चेक कर लेते हैं लास्ट, दैट इज रैंडम मेथड एक्चुअली. ठीक है, रैंडम मेथड में थोड़ा सा आप लोगों को बताना था. रैंडम मेथड में सपोज दैट यू आर कॉलिंग, वेट अ मिनट, रैंडम. ठीक है, रैंडम मेथड, मैथ डॉट रैंडम. मैथ इज अ क्लास नेम, दैट्स वाई आई एम कैपिटल में है. ठीक है, मैथ रैंडम. और यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास करने की नीड नहीं है अभी फिलहाल. ठीक है, कंट्रोल के करिए. कोई सिंटैक्स एरर? नो सिंटैक्स एरर. अब इसका जो भी आउटपुट होगा आप लोग नोट करेंगे. ठीक है, सभी लोग. इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0.2325384110039752. सो इट इज जनरेटिंग अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to less than 1. ठीक है, दिस टाइम अगेन आई एम गोइंग टू compile it. Again I'm going to compile it, close it, and again I'm going to run it without doing any modification in the program. So what is showing? It is showing another value between the 0 and 1.
In the previous one, it was showing 0.232538484111003975. Now this time it is showing 0.149702140 and so on. It is generating random number again and again. ठीक है? So once you compiled your program and after running it, it is generating another number. So what it's showing? It is showing the random values. ठीक है? So that is the purpose of the random number. You can generate a random number between any 0 to 1. ठीक है? So that is the purpose of random function. And एक function और देख लेते हैं, max और min का. ठीक है? लास्ट फंक्शन है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम तो पूछिएगा. ठीक है? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मैक्स. मैंने लिया 456,789. ठीक है? और मैंने इसको क्या किया, डबल कोट्स में राइट कर दिया. क्लियर? प्लस सिंबल. और मैंने सेम चीज़ यहाँ से कॉपी कर ली, क्योंकि ये फंक्शन है, हम आगे यूज़ भी करेंगे. मैथ M कैपिटल डॉट यहाँ पेस्ट कर दिया. ठीक है? और इसी में ही हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं. आफ्टर दैट मिन फंक्शन यहाँ यूज़ कर लेते हैं, मिनिमम. ठीक है? MIN. मिन फंक्शन का आपका यूज़ पता ही है, मिनिमम वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा और मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू. कंट्रोल के करते हैं, नो सिंटेक्स एरर. पहले में आंसर आना चाहिए 789 एंड सेकंड लाइन में आंसर आना चाहिए 456. ठीक है? राइट क्लिक करिए, क्लिक ऑन ओके बटन. तो 789 यहाँ पर आ रहा है आंसर और उसके बाद क्या आ रहा है 456. ठीक है? अगर आप इसको क्लियर कैश नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ से क्लियर नहीं करेंगे तो फिर प्रीवियस आउटपुट भी शो करेगा. जैसे कंट्रोल प्लस के कर लिया तो अब ये क्या हो गया, विंडो क्लियर हो गई. अब फिर से रन कराएंगे तो केवल करंट में जो भी प्रोग्राम है उसी का ही आउटपुट आएगा. ठीक है? नाउ द वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू 789 एंड मिनिमम वैल्यू इज 456. क्लियर? So we have seen lots of programs today. Just now you have to do the practice of the same programs or the program that we had not discussed here. Different functions in library functions. So you have to do the practice of that functions also, like floor function, like ABS function. ठीक है? So do the practice. If you have any problem, you can discuss me. ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट भी करिएगा. We will discuss in next class. Okay class? So I'm going to end our session. Have a nice day. Good day to all of you.